گزار ہیں ہم شکر گزار ہیں کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ السلام علیکم جو نرگس صاحب آپ یہاں تشریف لائے اور وقت دیا آپ نے ہمیں بہت ہم شکر گزار ہیں کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ جیسے لوگوں کی آواز اور خیالات اپنے سامعین تک پہنچائیں اور آپ کو میں بتانا چاہتی تھی کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے پھر مجھے یاد آیا آپ یہ بتائیے کہ یہ عنوان سن کے آپ کو کیا یاد آیا؟ ہاں بہت سی چیزیں یاد آئی ہیں اور آ سکتی ہیں عنوان کو سن کر پھر مجھے یاد آیا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا اپنا مرغے کا واقعہ ہے اچھا اس کی کوئی نوعیت اجتماعی نہیں ہے خاندان کے سے متعلق ہے ایک لڑکی تھی اچھا پھر مجھے یاد آیا نا پہلے آپ یہ بتا دیجیے کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ تو میں نے سنا بہت بڑا تھا اچھا یہ بات آپ نے سنا؟ ہاں سنا اور اس طرح سے ہمارے سامنے جیسے پیش آیا اچھا قریبی ماحول میں کا واقعہ ہے جیسے ہم لوگوں کے سامنے پیش آیا تو ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا عذرا بہت خوبصورت لڑکی تھی تو اس کی منگنی خاندان ہی میں ایک ساتھ ہوئی تھی ان صاحب مرتبہ تھا اچھا تو منگنی کا نکاح ہو گیا تھا رخصتی نہیں تھی نکاح ہو گیا تو سلسلہ اور رخصتی ہونی تھی ایک برس بعد یا ڈیڑھ برس بعد مگر کیا ہوا کہ ایک دن تلائی کے مرتبہ کا انتقال ہو گیا تو وہ لڑکی صحن میں بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی تھی تو اس نے اس طرح کچھ سنی نہیں بالکل غیر متعلق بالکل غیر جاندار کو سنا وہ بالکل خاموش خاموش ہو گئی اور اس کے بعد ان کی چھت پر ایک عمارت دوسری منزل تھی اس مکان کی وہ وہاں چلی گئی زینے چڑھ کر اوپر کے کمرے میں دوسری منزل میں فوراً وہاں چلی گئی لڑکی اور اب وہ وہیں رہنے لگی اچھا بہت کوئی کرتے لوگ سے بلائیں اچھا کچھ کہتی کہ واقعی کوئی یاد دلا کے بلایا جائے وہ روتی نہیں تھی کچھ نہیں بالکل خاموش بالکل پتھر اور صاحب اس کی گزار بھائی تنہائی میں اس نے رہنا شروع کیا وہیں کھانا جاتا تھا وہیں سب پوری زندگی تو چند مہینے گزرے ایک دن کیا ہوا کہ اچانک وہ وہاں سے اتری کوٹھ پر اور اپنا بس کھولا اور بہت ہی شانہ قسم کا لباس جو روزانہ نکالا پہنا لوگ حیران یہ کیا قصہ اور پھول اس نے پھول پہنے جوڑے میں اور گجرا یہ عجیب و غریب بات تھی کہ ایک لڑکی جو بالکل پتھر ہوئی جو بڑا حادثہ پیش آیا ہو تو یا تو رد عملی کو نہیں دیا تھا یا یہ عجیب و غریب تو اس کی کسی سہیلی نے پوچھا تو ہوا کیا ہے اسے بڑے اطمینان سے کہا کہ وہ آئے تھے اچھا ہاں وہ آئے تھے اور وہ مجھے لینے آئیں گے پھر کون آئے تھے کہ وہ لباس میں اوپر چلی گئی تو معلوم ہوا کہ اسے خواب میں دیکھا ہے کہ مرتضیٰ آئے ہیں تو منگے تک میں کہا کہ میں آؤں گا تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو لوگ سمجھے دورہ پڑا ہے ظاہر بڑا حادثہ ہے تو یہ غیر متوازن ہو گئی لڑکی تو اوپر رہی اوپر بیٹھ گئی جا کر تھوڑی دیر کے بعد جو لوگ گئے دیکھنے میں کیا کہتے تھے تمہاری وہ ختم ہو چکی تھی ہاں اب اتنا عجیب قصہ تھا یہ بہت دھیما سا عجیب سا بہت شدید بہت دھیما یقیناً کچھ عجیب کچھ آوازیں بھی نہیں ہیں فریادیں بھی نہیں ہیں اور واقعہ ہو گیا یہ بہت قریب ماحول تھا یہ قصہ تو عجیب سا تھا تو آپ کو یہ واقعہ جو یاد رہا تو یوں تو زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں آپ نے اور بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ گزر گئے یا حادثات میں گزر گئے تو کہیں یہ تو نہیں کہ آپ کی طبیعت میں خود اتنی ایک اداسی کا عنصر ہے ایک تنہائی کا اداسی تھی نا ہاں اس نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ کے طبیعت کی مزاج سے مطابق رکھتا تھا کچھ عجیب سا قصہ کچھ داستان سی جیسے حقیقی داستان بالکل اس طرح کا واقعہ تھا اور یہ بہت مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے تو یہ ہاں یہ تو آپ کے قرب دیوار کی بات تھی جو آپ کو یاد رہی اس کے علاوہ کچھ یاد بہت سے واقعات ہیں کوئی اپنی یعنی یہ یاد کہ شاعری آپ نے کیسے شروع کی ہاں ہاں یہ بات ہاں صاحب پہلے میں یہ مجھے یاد آیا ہوا یہ کہ شام کا وقت تھا شام سے ذرا پہلے سمجھیے کہ 5 بجے کا وقت ہے اندھیرے سے پہلے تو ہاں شام کا وقت صحیح یاد ہے تو ہم لوگ کھیل رہے تھے اپنے محلے میں اور بھاگ دوڑ کے کھیل تھا تو کسی نے کہا کہ سیدھے ہو لو دوڑا تو میں کربلا کی طرف مغرب کی طرف اپنے محلے کی گلی سے میں نے دوڑتے یہ کہا کہ کربلا جانے سے رات ہو جائے گی وہ یہ کہے کہ میں فون کھڑا ہو گیا تو یہ کیا قصہ ہے یہ تو کچھ اور طرح کی عبارت ہے وہ عبارت نہیں ہے جو ہم دن میں بولتے ہیں وہ زبان نہیں ہے وہ یہ نثر نہیں ہے چونکہ شاعرانہ ماحول تھا میں فوراً سمجھ گیا یہ بالکل خاص بات نہیں تھی شعر نہیں تھی کوئی جذبہ نہیں تھا مگر وہ جو کہانی تھا اس کا جملے کا وجہ میں لایا سب کھڑا ہو گیا اور بچ گیا حالت میں نہیں تو میں جا کے اسے پکڑ لیا اندازہ کیا عمر رہی ہوگی یہ بہت ہی چھوٹا تھا بہت کم اچھا باقاعدہ شعر جو میں نے کہا جس میں کوئی اس طرح کی غلطی بھی نہیں تھی کہ کوئی گر گیا ہو جو باقاعدہ شعر تھا تو وہ 2 شعر تھے یہ شاید 8 برس کی عمر ہوگی اور آپ کو یاد ہے ہاں بالکل وجہ ایسے واقعات آدمی بہت یاد دیتے ہیں اچھا آپ یہ بات دیکھیں گی کہ آپ کو بہت سے شروع کے واقعات تو یاد ہوں گے یہ آپ 4 برس کی عمر تھی یہ 6 برس پہلے ماضی قریب کا بھول جاتے ہیں اس زمانے کے واقعات بہت یاد ہیں اچھا پھر یہ نفس میں بالکل اتر گیا تھا یہ واقعہ یہ صورت حال تو یہ مجھے مسلسل یاد ہے تو وہ شعر جو میں نے پہلی مرتبہ کہے سب سے پہلا شعر یہ تھا کہ چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں اس ہمارا سر تھا چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی اب سب جملہ شعر کا شعر پہلا تھا اس کے بعد غزل مکمل کی کچھ دنوں کے بعد سب سے پہلے شعر لکھا تھا اور اس کا غزل مکمل کی دوسرا شعر جو تھا وہ صرف شعر ہی رہ گیا غزل تو کبھی نہیں گئی اور یہ شعر تھا کہ جو میری کیفیت کی پوری نمائندگی کرتا ہے میرے ذہن میرے مزاج کی میرے ذہن کی وہ یہ صاحب کہ نہ جانے کیا ہے یہ بات اور کیا حقیقت ہے نہ جانے کیا ہے یہ بات اور کیا حقیقت ہے مجھے تمہیں سے محبت تمہیں سے نفرت ہے یہ شعر ہے اور شعر نہیں کہے لیکن یہ مجھے بہت ہی عجیب سا لگتا ہے جیسے میں پورا اپنے آپ کو منتقل کر دیا ہوں پوری طرح کھول کر سامنے آ گیا ہوں یہ بالکل اندر بالکل بس وہ تو شاعری شروع ہو گئی اتنی آپ نے چھوٹی عمر میں شاعری شروع کر دی تو آپ کچھ اور کھیل وغیرہ نہیں کھیلتے تھے بچوں کی طرح؟ کھیل تو میں کھیلتا تھا لیکن قصہ کیا ہے میں ایسی صورت حال سے بچتا تھا جس میں مقابلہ درپیش ہو یعنی ہار جیت کا سوال نہ پیدا ہو جائے کیا وجہ تھی کہ آنا جھوٹی آنا یعنی کچھ تربیت اس طرح دی گئی تھی تم بہت ذہین ہو تم بہت ہی اہم آدمی ہو اچھا میں جانتا تھا میں ذہین نہ ہوں یار میں اپنی حفاظت کرتا تھا میں ایسے موقعوں سے نہیں کرتا تھا خواہ کہ اگر سود کے ہو اگر ہار گئے چنانچہ کھیلتا تو تھا لیکن میں پسند یہ کرتا تھا کہ بجائے کھیلنے کے کھیل دیکھوں اگر مجھے ہاکی بہت پسند تھی میں ہاکی کھیلتا تھا لیکن اگر ایسا موقع ملتا کہ اس دوران کہ مجھے کھیلنے والے دیکھنے کا موقع ملے تو میں دونوں ترجیح دیتا ہوں تو پھر آپ نے وہی تماشائی کا رول ادا کر دیا ہمیشہ میں تماشائی کا رول ادا کیا کچھ کھیل میں کھیلتا تھا ہاکی ہے کرکٹ مجھے پسند نہیں بالکل یہ بہت فضول مجھے معلوم تھا بڑا وقت ہاں بہت ہی اتنا انتظار تو میں پہ گیا تھا 5 دن 14 دن نکلتا ہے لیکن میرا جدید ترین کھیل ہاکی کرکٹ میرے خیال میں قدیم کھیل ہے جو بڑا وقت ہوتا ہے لوگوں کے پاس تو ہاں کہ میں نے بہت کھیلی ٹینس بھی اور اپنے جو انڈور گیمز ہیں اچھا اس وقت جو مقبول کھیل تھے جن میں وقت بہت زیادہ ہوتا تھا جیسے شطرنج شطرنج ہم نے شطرنج میں نہیں کھیلی ہمارے زمانے میں شطرنج بہت کم ہو گیا رواج پھر دوبارہ شروع ہوا رواج اس کا یعنی یوں سمجھیے کہ تقسیم سے پہلے شطرنج کھیلی جاتی ہے لیکن رواج کچھ کم ہو گیا تھا اچھا اچھا آزادی کا پھر شطرنج باقاعدہ منظم مقابلے اس کے شروع ہوئے تو آپ نے جو یہ کہا کہ آپ میں انا بہت تھی اور اس انا نے آپ کو تنہا کر دیا تو یہ تنہائی ہمیشہ کے لیے آپ پہ مسلط ہو گئی
और जोन साहब आपको मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमान से ये जरूर पूछते हैं कि मौसीकी में आपको क्या शौक रहा, ताकि उस मुनासिबत से हम आपकी पसंद के नगमे सुनवा सकें। तो नगमे पहले मैं ये समझ रहा कि मुझे बड़ा शौक रहा, और सबसे पहले शौक जो दारू मुझे वो उर्स के जरिए। अच्छा। हमारे जब तो हमारे मोहल्ले में दरगाह है, उर्स होता था, तो बिल्कुल अपने घर की चीज थी। तो कव्वाली पहले हमारी मूसिकी कव्वाली की शक्ल में पहले हमारे सामने में दाखिल हुई, और उसके बाद मुझे फिल्म देखना बहुत शौक लगा। अच्छा। और उदास गाने, इंतहाई उदास, वही पसंद उदास, और हमारे भाई को उदासी गाने पसंद थे। तो साहब मैं आपसे जो वो करूँगा फरमाइश, तो किसी उदास गाने करूँगा, मसलन जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। अच्छा, हाँ तो जरूर। और आमतौर पे वैसे ये है कि उदास गाने बहुत पसंद नहीं किए जाते आम सतह पर, लेकिन ये गाना जो आपने बताया है तो ये मैंने देखा कि अक्सर हमारे पास फरमाइशें भी आती हैं और आमतौर पर इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। हमने सुना है कि इंसान का सफर ज़ात से कायनात की तरफ होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कायनात से सिमट के ज़ात की तरफ आ गए। सही, अच्छा। तो ये हमें क्या समझे, असल हकीकत क्या है इसकी कि आप सिमट गए? नहीं, ऐसा नहीं, ज़ात से है। मेरा जो ताल्लुक शायरी से है, तो शायरी का रिश्ता जो ऐसा है, एक ऐसी शायरी का फन है, एक ऐसी मेरी मसरूफियत है कि मुझे हर वक्त मुतालिब रखती है गिरदो पेश से, अपने माहौल से, अपने शहर से, अपने सूबे से, अपने मुल्क से, कौम से, इंसानों से, और इस तरह फिक्री को सिलसिला जो है मिजाज में वो कायनाती मसाइल से मुताल्लिक़ रहता है। मैं सोचता हूँ तो इस मामले में मैं अपने फिक्र ख्याल के तौर से सिमटा हुआ नहीं हूँ, मैं अपनी अमली ज़िंदगी में कहने के सिमट के रह गया हूँ। मैं एक बजे तक बिल्कुल मैं सामने नहीं कर सकता, रोशनी मेरी आंखें, तो इसलिए कहें ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल यानी कायनात से और हयात से मेरा रिश्ता उस्तवार है। अमली ज़िंदगी में कहते हैं कि बहुत शरीक हयात का बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो एक कामयाब इंसान को कहाँ तक आगे बढ़ाने में साथ देते हैं या पीछे घसीट देती हैं, इसलिए हटा देती हैं। तो आपको तो बड़ी इंटेलेक्चुअल खातून मिली, शरीक हयात कैसे ज़्यादा है ना? नहीं, मैं कहता हूँ कि गालिबन बज़ाहिर उनका शौहर हूँ, मेरे ख्याल में उनकी बीवी उमर है, वो मेरे शौहर है, उनको ज़्यादा फ़ाल है ज़िंदगी में, वो बहुत ही मारूज़ पसंद है, अपने बाहर रहने का बहुत मेहनती, तो बहुत ज़्यादा फ़ाल है, मैं निस्बतन कम फ़ाल हूँ। तो जॉन साहब, आपने अपने बचपन से लेकर अब तक जो महरूमी का आपको एहसास रहा, तो आपने शऊरी कोशिश नहीं की कि आपके घर वाले और आपके बच्चे महफूज रहें? हाँ, नहीं की कोशिश, यानी मुराद ये कि आप फिर अपने सवाल का दोहराएंगे क्या? मेरा मतलब ये था कि आप तो महरूमी का शिकार हुए, लोगों ने चाहे आपको नजरअंदाज किया, तो आपने अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और वो मोहब्बत, रफ़ाक़त, शफ़क़त वो दी कि वो इस एहसास महरूमी से बचे रहें? इसलिए मैं बताऊँ कि तो मुझे लोगों से शिकायत नहीं है। अच्छा। मुझे अपने माहौल से बिल्कुल शिकायत नहीं, बल्कि मैं अपने आप से, बल्कि मेरे माहौल ने मुझे मेरे हक़ से ज़्यादा दिया। मैं एक मामूली शायर हूँ और एक तालिब इल्म हूँ, मैं पाकिस्तान में मुझे मेरे हक़ से ज़्यादा दिया, और मैं अपने बच्चों से बिलाशुबा बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं उनके लिए जो कुछ मुझे करना चाहिए उतना कुछ मैं नहीं कर पाता अपनी इस बीमारी की वजह से। ये है तो मैं, आप बच्चों के दोस्त हैं? हाँ दोस्त हैं, और एक बात और भी कि मैं कभी पसंद नहीं करूँगा कि मेरा कोई बच्चा शायर हो, अगर मुझे उसमें रुझान पाया जाता है तो मैंने देखा वो शायरी करा मैं गला घोट दूँगा। इसलिए आप कहते हैं कि वो इतने दुख ना झेलें? वो अज़ाब का काम है साहब, ये काम अज़ियत का है, दिल जलाने का, अपने ज़ख्म खुरचने का नाम है, काम है, खून तोड़ने का काम है। फ़नून लतीफ़ा में आपको किसी और चीज़ की तरफ आपका रुझान है? सब मैं फ़नून लतीफ़ा में ड्रामा किया ना, मैं ड्रामा करता भी था, मौसीकी से भी दिलचस्पी मुझे सुनने से, बल्कि गाने खालिदा के बहुत खुशहाल बातें हुई। अच्छा। तो एक लड़की के सिलसिले में मुकाबला हुआ कि आप दो आदमी गाएंगे, जो अच्छा गाएगा उससे मैं मोहब्बत करूंगी। स्वयंवर होना था? अच्छा। तो समझते हमारा बहुत अच्छी, लेकिन उस मुकाबले में हार गए। तो ये बहुत दुख मिला। हाँ, उनका तो नहीं सकते, बड़ा शौक है, नहीं बहुत प्यारा, उदास गज़लें, उदास गाने, कोई बात बहुत पसंद है। आपकी फरमाइश पर मैंने तमाम ये नगमे नोट कर लिए हैं जो आपने बताए थे, और इस प्रोग्राम के दौरान मैं ये नगमे पेश करती रहूंगी जैसे जैसे वक्त मिला। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में अब ऐसा होना चाहिए कि दश्ते तन्हाई में है ना, अपने ज़रूर इसमें कैफियत है ना, एहसास, हुज़्न। अब ये सही है, मैं हक़ीक़त पसंद हो गया हूँ, लेकिन शुरू में इतना तसव्वुर पसंद था, इतना आइडियलिस्ट कि पूरी ज़िंदगी से आइडियलिज़म में गुजरी, जो चीज़ें वो इंतहाई शक्ल में कबूल थी, कम तौर पे कोई समझौता नहीं हो सकता। हसीन तो हसीन तरीन, ताकतवर तो ताकतवर तरीन, ज़हन में गाँव से कम आदमी, वो ताकत का कोई सिमर तो गाँव से कम नहीं, मसलन तो आला शक्ल में चीज़ें कबूल करने का रुझान था। तो ऐसा रुझान जैसे आदमी को ज़िंदगी में करता परेशान, इसलिए क्यों मिलती नहीं आपको, तो मैं अब हक़ीक़त पसंद यकीनन, लेकिन वो तबीयत और आदत जो है, चीज़ तबीयत चाहती तो वही है जो चाहती है। आपको फिर एहसास महरूमी नहीं हो गया? शदीद हुआ, तो मेरी पूरी मिजाज, मेरी शख्सियत, पूरा मिजाज एहसास महरूमी की नुमाइंदगी करता है। और जब आपको एहसास हो गया कि आप शिकार हैं एहसास महरूमी का, आपने शऊरी कोशिश नहीं की? हाँ, मैंने हक़ीक़त पसंद होने की कोशिश की, और मेरा ये दौर जो है वो हक़ीक़त पसंद बनने की कोशिश में गुजर रहा है, लेकिन वो जो शख्सियत बन जाती है ना, वो बन जाती है। लेकिन मैं बहरहाल पहले मसलन में इंतहाई यासियत पसंद था, गाड़ी के साथ, उस तस्वुर पसंद के साथ मैं यासियत पसंद भी था, उम्मीद पसंद भी था, लेकिन अब ये हुआ कि मैं मेरे अंदर उम्मीद पैदा हुई है, जो मैं इतनी अज़ियत में हूँ कि फितरत ने अंदर से एक निज़ाम मेरे अंदर पैदा किया है जो मुझे बचा सके, वो उम्मीद है। उम्मीद परस्ती मेरे यहाँ पैदा हुई बिल्कुल चंद महीने, चंद साल पहले, और ये फितरत का मेरे साथ ताम समझ लीजिए कि चूँकि मैं बहुत बेआराम हूँ इन दिनों एक ज़माने से, तो मुझे बचाने के लिए एक निज़ाम गया, मेरे अंदर कायम कर दिया गया, वो उम्मीद है। आपने जब अना की खातिर किसी से कभी समझौता नहीं किया, तो ये चीज़ आपको आगे बढ़ने में रुकावट साबित बेहद, यानी मेरी, मैं कह सकता हूँ बड़ी आसानी से कि मैं एक नाकाम आदमी हूँ। मैंने मसलन हुकूमतों में माशाल्लाह लगा, माशाल्लाह किसी दौर में भी मैंने कभी सर नहीं झुकाया, यानी ज़रा भी अगर मैं शरीक कार हो जाता, यानी उन शायरों का साथ देता जो हुकूमत की तस्वीर लिखते थे मसलन यूँ के ज़माने में, के ज़माने में, तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया, ना अफराद से समझौता किया, ना निज़ाम से, कभी नहीं किया। लेकिन इसका नतीजा यकीनन ये हुआ कि इंसान में जो अंदर आदमी बहुत सी आदतें होती हैं, और कभी कभी सोचता है कम्युनिटी इख्तियार करे, बेईमानी करे, आता है लम्हों में आता है, बस समझौता कर लेते, क्या बिगाड़ देता, कौन सा कराची का ट्रैफिक उदाहरण बना देता, आप समझौता कर लेते, बहुत से कर लेते, हम भी शामिल होते हैं, चौको है तो तिकोना ना हो जाता, मगर वो आता है लम्हों में आती है बात, लेकिन बस वो चूंकि शक्ल बन जाती है, जो आपका किरदार बन गया, जो बन गया, तो फिर वो आपसे। अच्छा, ये बताइए कि आपके बचपन का दौर गुजरा, शायरी का दौर आपका शुरू हुआ, तो शायरी का आप अपना उरूज का ज़माना कौन सा करार देंगे? मैं ये कहूँ पहले कि शायरी का दौर शुरू हुआ तो शेर कहने शुरू कर दिए, क्योंकि माहौल में हमारे भाई भी शायर थे, हमारे भाई भी, यानी माहौल ये था, दादा परदादा सभी शायर अदीब थे, तो शायर होने बड़ी आसानी हुई, डिस्कवर नहीं करना पड़ा, कितने शोर दरियाफ्त करने में वक्त नहीं लगा, ये हो गया। फिर उसके बाद ड्रामे की तरफ चला गया, ड्रामे में नस्र भी होती है, मंजूर से भी होती है, तो हमारे यहाँ बरादरी में एक अंजुमन थी, बज़्म हकूमा, क्लब था ड्रामा का क्लब था,
तो वो मुस्लिम तारीख से मजालिम ड्रामे स्टेज करता था। अच्छा। तो बहुत शानदार ड्रामा, बड़ा मुसल्ला किस्म का स्टेज था, जैसे कि बम्बई आपके कलकत्ते के थिएटर कंपनियां होती थी, उतना ही सारा सामान था उस मखदूमा के पास। तो हम उसे देखा करते, बुजुर्ग करते थे, तो हम भी उसका उनकी नकल में, हमें फर्स्ट ये वो होता था मार्च में, तो हम अप्रैल में उसकी नकल में ड्रामा कौन लिखता था? उसमें ड्रामे कुछ और लोग होते, कुछ बड़े लोग हमारे बुजुर्ग लिखे थे वो, और मैं खुद भी, मैंने 2-3 ड्रामे लिखे, उसमें हिस्सा नज़म भी आता था। अच्छा, आपने अपने लिए क्या किरदार लिखा? मैं आमतौर पर मैं उसका डायरेक्टर भी सही बताऊँ आपको, अंजुमन शुरू में जब गलियों से गुजरता था, मुझे शायर के तौर पर नहीं पहचानते लड़के, लड़कियां गलियों को गुजरा कहते वो जा रही है, जॉन वो जो अदाकार ड्रामे में पार्ट किया था, तो 200-250 आदमी मुझे इस तरह पहचानते थे। तो आपसे मैं पूछी थी कि आप अपने लिए क्या किरदार मुंतखब करते थे? वो किरदार मरकज़ी होता था, हीरो। अब मैं चाहती थी कि अदब के हवाले से थोड़ी सी बात करें। आप इतना फलसफा आपने पढ़ा, फलसफा सोचते हैं, फलसफा बोलते हैं आप, और इंतहाई अदबी रंग आपकी शख्सियत पे भी है, तहरीर में भी है। ये आपने डाइजेस्ट में क्यों, डाइजेस्ट की तरफ क्यों आ गए? क्यों निकाला? हाँ, लोग भी कहते हैं कि गैर अदबी चीज। सही अरे हमारा इल्मी और अदब पर्चा था वो, दरअसल आपने को देखा हो तो खाली इल्मी और अदब ही था, लेकिन हमने देखा कि वो हमसे क़ारीन तक क़ारीन के वसी हद तक नहीं पहुंचा पाते, उदानी अदब से बिल्कुल जिसमें नहीं थी, यानी नया नया कुछ होता। तो हमने चाहा कि होना चाहिए कोई फायदे पे हो, जो हम काम कर रहे हैं पहुंचना नहीं चाहिए लोगों तक, उसकी कुछ तो उसका असर तो निकलना चाहिए। यानी हमने उसे दिलकश बनाने के लिए और मकबूल बनाने के लिए उसे रंगारंग कर दिया, यानी उसमें माशियात भी, सियासत भी, साइंस भी, कहानियां भी, ये हुआ, और हमने साइड दिया क्योंकि ये साइड मकबूल साइड है, डायरेक्टर साइड होता है, सियासत भी होती थी, नसियात भी, तो हमने इस तरह पर्चा निकाला था। लेकिन आखिर में जो डाइजेस्ट निकलते हैं आजकल वो सिर्फ उसमें कहानियां होती हैं। हमने निकाला था ना उस वो रंगारंग था, और आपने उसमें एक कोई मखसूस मेयार मद्देनजर रखा जिसे आप नहीं गिने दिया? उसमें हम बेहतरीन कहानी छापना चाहते थे, नसियातों को मजमून है तो वो माहिराना मजमून होना चाहिए, कोई इंटरव्यू किसी जिम्मेदार सियासी शख्स से वो इंटरव्यू होना चाहिए, तो इस तरह का हमने पर्चा निकाला। ये आपके पर्चे में भी और आपकी तहरीरों में भी फलसफे का रंग बहुत है, और बल्कि जब भी मैं आपको सुना तो गुफ्तगू में भी है, लेकिन शायरी में मैंने देखा कि आप इस कदर सहल शायरी करते हैं कि आम फहमी हो जाती है वो, तो उसमें क्यों नहीं वो? हाँ था मेरे साथ ये है मुश्किल पसंद क्यों नहीं है? होता क्या है कि मुशायरे जो हम कलाम सुनाते हैं मुशायरे में, तो मैं शायद और लोग इसका ख्याल रखते हूँ, मगर मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि हम आए हैं, लोग बैठे हैं इतनी देर से, रात खाली कर रहे हैं, तो जो सुनाया जाए उन तक पहुंचना चाहिए। तो मैं अपनी गज़लों में से उन गज़लों का इंतखाब करता हूँ जो आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा। होता क्या है कि जिन लोगों ने मुझे मुशायरों में सुना है, मतलब ये कि मिडिल ईस्ट में जो मेरे सुनने वाले हैं या यूरोप में जिन्होंने सुना है या कैसे लोग सुनते हैं, वो समझते हैं बहुत आसान शायर। मजरूह साहब ने मेरे बारे में राय दी और बहुत ही मुबालगा में, बहुत तारीफ, बहुत ही सहल और बहुत ही सहल मुमकिन कमाल है। तो मैं भाई मेरा आपने पढ़ लिया कलाम और भी जो मेरा मजमू आने वाला है, तो ये बिल्कुल एक रुखी है, राय ये मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल तो सही नहीं है, वैसे ये राय कायम करने में आपका हाथ है। मेरा हाथ है बिल्कुल, जो मैं सुना था वो गज़लें हूं, तो ज़ाहिर आसान, अच्छा आसान का मतलब ये नहीं है कि आसान शायरी बहुत मुश्किल शायरी होती है, बहुत मुश्किल, ये मुझे मालूम है, बहुत मुश्किल होती है। अब मुझे कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या, बहुत ये बहुत आसान है जी, लेकिन यही बात बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और चलिए हमने आपकी शायरी पे बात की, अदब के हवाले से बात हुई, अब जाती जिंदगी के बारे में आप मुझे कुछ बताइए कि जाती जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा किस भाई ने मुतासिर किया? माशाल्लाह आप ऐसे इल्मी अदबी घराने से आपका ताल्लुक है कि ये खाना हम आपका बात है। असल में हमारे वालिद सबसे ज्यादा उन्होंने मुतासिर किया, दिन भर लिखते थे और उनका ताल्लुक मज़ाहिब आलम की तहक़ीक़ से भी था और इल्म हदीस से भी था, तारीख़ इस्लाम मुताबिक कई ज़माने जानते थे। और फिर हमारे बड़े भाई रईस साहब जिन्हें मरहूम कहना पड़ा है, तो वो बड़े बड़े कादुल कलाम शायर थे, बहुत खूबसूरत बेपनाह कादुल कलाम, और उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले कई बरस पहले ऐसे शेर कहते कि आज आप उस वक्त आवाज़ सुनती तो आपको हैरत होती, आज तो पाकिस्तान बन चुका है। बस देखिए उनका शेर कि याद रखना वक्त फरमान टल सकता नहीं, मौत टल सकती है, पाकिस्तान टल सकता नहीं। अगर सन 43 की बात आप कहें नहीं यकीन नहीं आता इंडिया चला जाएगा बड़े सगीर से, उस वक्त शायरी कह रहे हैं। तो ये तो ऐसा लगता है कि जो इल्म नुजूम और उसको बिल्कुल ताऊ नहीं दूंगा, बिल्कुल वो फकत शायर थे, 15-20 बरस पहले की बात, वो खाली शायर थे। दूसरे शेर उन्होंने कहा 1 बरस पहले कि ईद के मौके पर कि ऐ महे नौ काश इतना हो तेरे इम्कान में, साले आइंदा हो अपनी ईद पाकिस्तान में, वो यही हुआ। तो मैं उनसे बहुत मुतासिर था क्योंकि बहुत खूबसूरत, बहुत वसीम का मुताला, बहुत शानदार शायरी वो करते थे, सियासी कौमी शायरी, तो वो बहुत मुतासिर करते थे। मतलब जरा एक लम्हे में उन्होंने एक मिनट शेर कह दिए, तो ये देखकर उनके वक़ाल कलाम में तबीयत बहुत मुतासिर होती थी। फिर हमारे फलसफे के ज़्यादा ताल्लुक है हमारे मंजिल भाई से मोहम्मद तकी, वो हर वक्त फलसफे में मसरूफ़ रहते थे, तो ये दोनों चीज़ें मेरे बहुत मुझ पर असरअंदाज हुई, शायरी भी और फलसफा भी, और मैं फलसफी और शायरों को एक तरह से अपना मिसालिया समझने लगा। तो शायरी में आपने क्या इस्लाह ली रही साहब? नहीं उनसे नहीं, मेरे बाबा से शायरी, क्योंकि वो भी बाबा ही के शायर थे। आपके भाई साहब का कोई कलाम शायर हुआ? हाँ असल में शायद आप आगे सवाल करें तो उसका जवाब मैं उसका दूंगा, उनकी कुछ चीज़ें शायर हुई, लेकिन शायरी कुछ नज़मी शायरी सालों में, लेकिन मजमूए की शक्ल में नहीं शायर हुआ, तो ये मेरा बहुत बड़ा दुख है। अब आप भी बहुत अरसे बाद मजमू आपने तरतीब दिया है और अब हम सुन रहे हैं कि मंजर यहाँ पे आने वाला है। देखिए बिल्कुल मजबूत बात हो गई। असल में राजा साहब उसका क्या है कि मैंने एक शख्स को देखा कि जब मेरी आँख खुली वो लिख रहा है, जब मैं सो रहा हूँ और रात को आँख खुली फटती 11 बजे सवेरे रहता है, तो देखा कि 11 बजे वो लिख रहे हैं हमारे बारे में, तो उन तक मजमू नहीं छपा। अब उसकी क्या वजह हुई, उसमें मुमकिन है मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी गैर जिम्मेदारी हो कि वो सामने चीज़ नहीं आ सकी, लेकिन 12 का कलाम नहीं छपा। हुआ ये था कि उन्होंने जो 2-3 बयानें बनाई थी, कोई 5-6 शेर थे उनमें, वो कोई दोस्त ले गया लौट के नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि मेरे बाप का कलाम नहीं छपा तो मेरा कुछ छपे, और मैं समझता हूँ बड़ी हद तक मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं अपने आप को सजा दे रहा हूँ तरह से। ये आप क्यों आखिर खुद अज़ियती के शिकार हैं, आप हर चीज़ की सजा मेरा पहला मजमूआ 25 बरस पहले आना चाहिए, तो जो 12 है, मैंने काबू पाया कि भाई चलो ऐसा है कि तुम्हारे बाप का कलाम नहीं छपा, तो तुम 12 अपने बाप के बेटे हो, तुमने वो 12 अगर महफूज हो जाए तुम्हारे नाम के साथ, तो ये ऐसे दुख की बात है, मुझे बड़ा ऐसा जुर्म होता है। जब मैंने कभी इशाद किया अपने कलाम के 10 सालों में भेजता हूँ, मजमूआ छपा था बहरहाल आ रहा है, बहुत खुशी की बात होगी क्योंकि बहुत से लोगों को इंतजार था, और आज आपने एक नए रुख का इज़हार किया है कि शायरी में न सिर्फ सहल पसंदी बल्कि गहराई और मुश्किल पसंदी भी है। तो अब जब मजमूआ हम देखेंगे, मैंने कहना चाहा कि मैंने आसान शेर नहीं कहे, तो मैं आसान शेर कहे, लेकिन 12 वो शेर भी जो ज़बान के एतबार से बहुत ज़्यादा सहल नहीं है, वो मेरे कलाम का गालिब हिस्सा है।
आपसे गुफ्तगू करके भी और आपका कलाम जहाँ तक सुना है पढ़ा है वो देख के अंदाजा होता है कि इंतहाई बेसाख्ता शख्स हैं आप। और यहाँ तक है कि अगर जी चाहे तो सारे बाजार में रस्म तमाशा भी आप कर सकते हैं। अगर चांद रात हो और ट्रैफिक न हो बंद रोड तो मैं लेट सकता हूं कोई आपको तामुल नहीं होगा। बिल्कुल तामुल नहीं होगा। तो ये कैफियत मजदूबाना है या तिलाना? बिल्कुल हाथ इरानी है। मेरे अंदर एक बच्चा जो है वो कभी गया बाल आने के लिए तैयार नहीं है, वो है। अच्छा बिल्कुल। तो पारा सिफत भी आप हैं इतने और बचपना भी है आप में और इतना हुस्न और उदासी भी है, इतनी लज्जा कैसे हो गई? देखिए जो आदमी तस्वीर पसंद हो और जो बच्चा हो जो दुनिया चाहती है उसे पुख्ता होना चाहिए और वो दुनिया से वो मामला करता है जो बच्चे करते हैं जिंदगी का मामला, तो नाकाम होगा भी, उसको उदासी में उसका मामला तो जिंदगी नहीं हो सकेगा। आपको नुकसान आपकी जिद ने पहुंचाया? हाँ, जिद ने, आइडियलिज्म ने, आदर्श की तलाश ने। अच्छा जॉन साहब, आपकी तहरीरें जब देखी मैंने पढ़ी तो मुझे कभी कभी एहसास हुआ कि मैं शायद अहद बाबुल के किसी शख्स की सुन रही हूँ। हाँ, इसे आप खुद को किस ज़माने का आदमी समझते हैं? समझिए जब मैं लड़कपनी की बात है, हमारे वालिद दरअसल एक खास फजा में रहते थे, कदीम बाबिल, अहदनामा अतीक, ओल्ड टेस्टामेंट, इस तरह की फजा थी उनकी। और बाद में बहुत जदीद थे, एस्ट्रोनॉमी के आदमी थे, तो वो बताऊं कैसे सुनता था जंद अवस्था, अहदनामा अतीक, हिंदुस्तानी गोया मदनी किताबें। तो मैं बाबिल से और इलाके से बहुत मुतासिर होता था और मैं गोया बड़े सही नहीं रहता ज़हनी तौर पर, मैं ज़हनी तौर पर बाबिल में रहता था। बाबिल के बागों में, मौलक बाग, उनके गोया नीचे गुजरा होता था। इसमें लिखा भी मैंने। अच्छा ये बताइए कि कभी तो आप इतने कदीम लगते हैं और कभी आप इस खतरनाक हद तक जदीद होते हैं कि ये लगता है कि हम बहुत पीछे, आप किसी बहुत आगे आने वाले ज़माने के। तलाक कह लें या आप तारीखी और तहजीबी तसलसल का तकाजा कह लें कि तसलसल मेरा जो कदीम और जदीद का वो टूट नहीं पाता रिश्ता। आपको लगता है कभी कभी आप इस ज़माने में मिस्टेक हैं? हाँ, मुझे महसूस होता है कि कभी कभी सोचता हूँ मुझे होना चाहिए था 14वीं सदी हिजरी में, और कभी सोचता हूँ कि मुझे 24वीं सदी में होना चाहिए। यानी इस दौर में जहाँ मैं हूँ मैं अपने आप को ना हम पाता हूँ। आपका स्टार क्या है? स्टार मेरा क्या है? 14 दिसंबर है मेरी पैदाइश, तो क्या होना चाहिए? तो ये जो सवाल किया ये बिल्कुल जदीद सवाल है। ये तकसीम के बाद ये सिलसिले शुरू हुए। उस जमाने में हमारे बुजुर्ग जो थे, जो नौजवान जमाने होते थे, उन्हें अहम समझते थे कि आपका स्टार क्या है, आपका हाथ दिखाइए। आजादी से पहले बड़ी रोशन थी। अच्छा, ये मगरबी अंदाज में आया है हमारे, लेकिन ये जदीद एक इल्म है। हाँ, मुझे ख्याल आया कि ये रुझान आज का बहुत आम है आजादी के बाद। मैंने इसलिए सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं, लिहाजा सामने जब मालूम कर लेंगे तो फिर वो आपके बारे में पढ़ेंगे, खुल के फिर आपको बता सकेंगे, समझ सकेंगे कि आप। मैं तो ये चाहूंगा ताज़ा साहिबा, कोई सामने से कोई साहिबा 14 दिसंबर को पैदा होने वाले के बारे में कुछ बताएं कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसको तबाह होना है, दवाई के बचना है। आपको रईस साहब से बेहतर कौन बता सकता था, उन्हें मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके कलम तो गवाह हैं कि हजारों क्या लाखों अफराद ने उनसे हमेशा रहनुमाई हासिल की। पसंदीदा आपका रंग, मौसम और खुशबू क्या है? हाँ, मौसम पहले बताऊं, मुझे इंतहाई पसंद है मार्च से लेकर जो मौसम शुरू होता है जून तक, 15 जून, और मुझे बरसात से चिढ़ है, जाड़ों से चिढ़ है। मुझे गर्मी लू है, मैं रस करने की जगह गली में, तमाम दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं और शाम लू चली ना, मैं चुपके से निकला गली में पहुंच गया और लोगों को किसी निकाल लिया घर से होटल है। मुझे गर्मियों की दोपहर ऐसी लगती है जैसे चांदी रात। आपकी मिजाजी कैफियत ऐसी तो नहीं कि कहते हैं कि जब लू चलती है तो पानी ठंडा हो जाता है? हाँ, आपकी मिजाजी कैफियत मुझे ऐसा आम लग रहा था कि उस पर बस करना चाहिए, रस करना चाहिए, यानी मुझे गर्मियों का मौसम बहुत ही पसंद है। मैं 14 दिसंबर की पैदा जाऊँ जी। तो आपने मुझसे ये भी जिक्र किया था कि आप मंसूर हल्लाज की बहुत मुतासिर हैं। असल में अल्लाह की शख्सियत बड़ी अजीब शख्सियत रही है हमारे खत अदब में, उर्दू में, सिंधी में, पंजाबी, हमारी जो ज़बान है इनमें उसका किरदार शायरी में बहुत उभर के सामने आया। और वह कि नमूना है वह इस आज़ादी राय का, एक बगावत का है जब सरमस्ती और कलंदरी का, तो इस पर मैंने पढ़ा और उसकी किताबों का तर्जुमा किया, उसकी तशरीह लिखी और अपने तौर पर भी मैंने हल्लाज की जिंदगी पर किताब लिखी है, बागी सूफी हल्लाज। इसमें मैंने काफ़ी काम किया। किताब तवासीन की बहुत शानदार किताब है, उसका तर्जुमा किया अपने शौक में। और एक हल्लाज के बारे में किताब है जो उनके साथियों ने चश्मदीद वाक़यात लिखे हैं, उसका भी तर्जुमा किया मैंने, अखबारुल हल्लाज। दरअसल ये जो आपने बगुलों के रक्स की बात की और गर्म मौसम आपको पसंद नहीं, पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में फौरन मंसूर हल्लाज का ख्याल आ गया। उसके अलावा आपसे बात करके ये एहसास होता है कि आप बुरा मत मानिएगा सवाल का, लेकिन मुझे लगता है कि खुदा न खास्ता अगर इसी कैफियत में आपकी आइंदा जिंदगी भी चलती रही तो आप खुदकुशी न कर लें। हाँ, मैं जिस अजियत से 2-4 रहता हूँ, मैं रात भर जागता हूँ, ऐसी बीमारी है, मैंने कई मरतबा कोशिश की। हाँ, बिल्कुल कोशिश की, बस वो आखिरी लम्हे पर पीछे हट गया। और मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर मैंने मंतिक और फलसफा न पढ़ा होता, यानी मेरी पूरी एक जिंदगी का तवील हिस्सा, मतलब मैंने कल तक भी बताया कि फलसफे का इस तरह की तरह, यानी मेरी अकली तौर पर तरबियत न हुई होती, अकलियत पसंद आना, रैशनलिज्म, तो मैं यकीन खुदकुशी कर लेता अगर सिर्फ मैं शायर होता। आपको संभाल लिया। सोच विचार के अंदर गौर खोज करने की आदत जो है, उसे कहा मैंने सोचा जब एक काम फितरत खुद ही अंजाम देगी, आपको मरना ही है जब, तो दूसरा काम खुद क्यों कर रहे हैं। लेकिन आखिरी लम्हे पर आता है ख्याल, 2-3 मरतबा मैंने, जो मैं दवाएं खाता हूँ नींद की, तो फल की 2 गोलियों से नहीं आती है, तो मैं सोचा 10 खा लूँ और पाप कटे मर जाऊँ। नींद क्यों नहीं आती? बस नींद क्यों रात भर नहीं आती, वो किस्सा यह है कि अजीब वाक़या हुआ संभालता है मेरे साथ। सुन क्या जरूर। उस जमाने में उर्दू बोर्ड में लोग अदबीस कैसे से काम करता था और अपने तौर पर फलसफे से मुतालिक कुछ लिखता पढ़ता रहता था। तो उर्दू बोर्ड से मैं आता 1:30 बजे वापस खाना करके आराम करता था, फिर कोई 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं फलसफे से मुतालिक लिखता रहता था। 6 बजे के बाद गैर इरादी तौर पर, ये 72 की बात है, गैर इरादी तौर पर मेरे अंदर एक सैलाब आता था शायरी का, एक गजल, दूसरी गजल, तीसरी गजल। उस जमाने में 6 गजलें, बिला बेसाख था, कलम बर्दाश्त था, बेसाख था, गैर तौर पर, और मुझे इसका शऊर भी नहीं हुआ कैसा हो रहा है। अचानक मुझे एक दिन अंदाजा हुआ कि मैंने कोर्ट में हाथ डाला, सुबह जब मैं उर्दू बोर्ड जा रहा था तो मैंने अपने कोर्ट की जब मैं हाथ डाला बहुत से कागज निकले, क्या है तो मालूम है कि पिछले दिन जो गजलें मैंने कही मैं तारीख में लिखता था गैर तौर पर, तो मैंने 5-6 गजलें कल कही। अच्छा, तो ये जैसे शुरू हुआ सन 72 से लेकर सन 76 तक कि रात भर 9 बजे तक गजलें कह रहे हैं, 10 बजे तक, फिर खाना खाया, फिर लेट गए। मैं तो लेट जाता था, मैं लेकिन दबाव नहीं लेटता था, दबाव जारी रहता था, वही शायरी। अब 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, जब इस तरह 1 बरस गुजर गया तो मैं भागा लाहौर कि अहबाब में रहूंगा, टल जाएगा ये सिलसिला, इससे बच जाऊंगा कुछ दिन के लिए। चुनांचे वहाँ अहबाब के मजमे में मैं इससे महफूज रहा शायरी से, लौट कर आया फिर वही
अच्छा। चुनाचे ये सिलसिला सन 72 से लेकर सन 77 तक चला, सन 5 साल। 76 के आखिर तक, और शायरी की जो रवायत है वो तो कट गई। ये शायरी का सैलाब आया था, और बेख्वाबी का एक सहरा रह गया, बेख्वाबी का एक रेगिस्तान रह गया जो अब तक। चुनाचे मैंने सन 76 के आखिर वो रो कटी है शायरी की, सन 83 तक एक मिसरा नहीं कहा, फिर सन 83 से कुछ बहाल हुई तबीयत, फिर शेर कहनी शुरू की। तो बहरहाल शेर तो मैं कुछ कहने लगा हूँ, कहता हूँ, लेकिन बेख्वाबी मेरी नहीं, जनात मुझे नहीं मिली, और मैं जो कुछ करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाता। एक आदमी ज़हनी काम करता है और ज़हनी पर हमला हुआ है, बेख्वाब ज़हन क्या करेगा? दुरुस्त। जख्मी है बिल्कुल मेरा दिमाग। दोस्त साहब, हमारी वो बात अधूरी रह गई कि आपने मौसम तो बता दिया, रंग और खुशबू। अजी रंग और खुशबू के बारे में, खुशबू हर तरह की खुशबू अच्छी लगती है, मेरे ख्याल में खुशबू को कौन पसंद नहीं करेगा, कैसी भी खुशबू हो। अच्छा। अब मैं उसका कोई नाम शायद न रख सकूं, मगर मुझे खुशबू, फूलों में गुलाब की खुशबू, चमेली की, सफेद चमेली की, और साहब मुझे इसकी कामनी की खुशबू पसंद है। ये तो ये हुआ, और आप फरमा रही हैं रंग। भाई रंग के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, वैसे फौरी तौर पर जो मेरे ज़हन में रंग आते हैं तालिबा साहिबा, वो है सब्ज़ और सुर्ख। अच्छा। किस वजह से, कि कोई खास वजह बहुत सी होती है। मेरा शेर भी है, एक सब्ज सब्ज झील में कश्ती है सुर्ख सुर्ख, एक जिस्म ख्वाब ख्वाब है, एक जान ख्वाब ख्वाब, मेरी गजल है। तो ये सबसे ज्यादा नुमाया किस्म के रंग है और जमालियाती इनका एक वो है, एक कैफियत रखते हैं ये सब्ज सुर्ख, शायद इसलिए, और कुछ और भी हो सकती है इसकी वजह, और भी हो सकती है। आप ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मोहब्बत, रफाकत और एतबार, जी, ये आपको हासिल हुआ? हाँ गजल है। तो ये सबसे ज्यादा नुमाया किस्म के रंग है और जमालियाती इनका एक वो है, एक कैफियत रखते हैं ये सब्ज सुर्ख, शायद इसलिए, और कुछ और भी हो सकती है इसकी वजह, और भी हो सकती है। आप ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मोहब्बत, रफाकत और एतबार, जी, ये आपको हासिल हुआ? हाँ, एतबार मुझे दोस्तों के दायरे की हद तक एक जमाने में बहुत हासिल था एतबार, लेकिन वो दोस्तों का बिखर गया मेरा। एक जमाने में दोस्तों का बड़ा इंतजार करता था, यानी एक हुजूम था दोस्तों में जो मेरे साथ रहता था, और मैं ये समझता था कि जो रिश्ते आपको बरसे में मिलते हैं, यानी खून के रिश्ते, दोस्ती का रिश्ता उससे ज्यादा, उनसे ज्यादा अहम होता है। लेकिन बात को तजर्बा हुआ तो मालूम ये हुआ, तजर्बा जब किया, कि न खूनी रिश्तों में कोई माना है, न दोस्ती की कोई माना है, तो मुझे तो इनमें कोई मानवियत नहीं नजर आती, यानी आमतौर पर मैं महसूस करता हूँ। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपको ये तीनों चीजें, मोहब्बत, रफाकत और एतबार, मुकम्मल तौर पे मिल जाता, काश मिल जाता। आप तो कह रहे हैं काश मिल जाता, मैं कहती हूँ शुक्र है नहीं मिला, वरना आप एक आम आदमी हो जाते और हम जोन एरिया से महरूम रह जाते। ये बताता हूँ, ये ख्याल है तालिबा साहिबा, ये ख्याल मेरे ख्याल में सही नहीं कि शायद जब तक तबाह न हो उस वक्त तक वो शायरी नहीं कर सकता, जब तक उसे दिक न हो, टीवी न हो, तो मेरे ख्याल में ऐसा आम तासुर यही है। गालिबन गलत है ये। देखिए शायर एक ज़हनी अमल है ना, और ज़हन को सुकून चाहिए जी। तो अजियत ज़दा ज़हन यानी मेरे ख्याल में बड़ा तख्लीकी कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। हो सकता है मुस्तक़बिल जो वाक़यात मिसालें ऐसी हों, लेकिन देखिए जो ज़हनी काम है ना, उसमें के बारे में आपका क्या? गालिब उस तरह परेशान आदमी नहीं थे, यानी बड़ी वो बहुत चीखते हैं, बहुत महरूमी का अपनी इज़हार करते हैं, लेकिन देखिए उनका शेर है कि हज़ारों ख्वाहिश ऐसी हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत निकले उनके अरमान, यहाँ हमारे अरमान निकले ही नहीं। अच्छा, हाँ ये है ना। हाँ, तो घुटन का शिकार हुए, यानी अज़ियत, घुटन, बेदिली, बेजारी तो होनी है, लेकिन मैं किसी तरह अपनी शायरी को उससे बचा के ले जाता हूँ। शायद आपकी अदा इस कदर शायराना जो हो गई है, जुल्फें आपकी दराज और एक बहुत ही बेनियाजी अंदाज में आपके, तो ये आमदन आपने स्टाइल बनाया अपना? ना, आमदन तो नहीं हुआ, ये कि बस ये कि बाल बढ़ गए, सोचा भाई बनवाने, बाल बनवा लिए, फिर लंबा दौर आया, नहीं बनवाया, बिल्कुल बढ़ते चले गए, यानी एक बेरब्ती, एक बदनज़मी सी जिंदगी मिजाज में जो है, एक बोहेमियन टाइप, तो ये चलने को जैसा भी है, ठीक है, आपका अंदाज किसी दिन बनवा लोग कहेंगे तुम पहचाने नहीं जा रहे। हाँ बिल्कुल, तो ये है कि इरादे नहीं है, भाई यूं ही है। हमने सुना है कि इंसान का सफर जात से कायनात की तरफ होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कायनात से सिमट के जात की तरफ आ गए। सही, अच्छा, तो ये हम इसे क्या समझे, असल हकीकत क्या है इसकी कि आप सिमट गए? नहीं, ऐसा नहीं, जात से मेरा जो ताल्लुक शायरी से है, तो शायरी का रिश्ता जो ऐसा है, एक ऐसी शायरी का ऐसा फन है, एक ऐसी मेरी मसरूफियत है कि मुझे हर वक्त मुतालिया करती है गिरदो पेश से, अपने माहौल से, अपने शहर से, अपने सूबे से, अपने मुल्क से, कौम से, इंसानों से, और इस तरह फिक्री वो एक सिलसिला जो है मिजाज में वो कायनाती मसाइल से मुतालिक रहता है। मैं सोचता हूँ तो इस माना में मैं अपने फिक्र और ख्याल के तौर से सिमटा हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं अपनी अमली जिंदगी में आप कहने के सिमट के रह गया हूँ। मैं 1 बजे तक बिल्कुल मैं सामना नहीं कर सकता रोशनी का, मेरी आंखें, तो इसलिए कहने तौर पर मैं बिल्कुल यानी कायनात से और हयात से मेरा रिश्ता उस्तवार है। तो इस मौके पे मैं चाहूंगी कि हमारे सामीन को अगर आप अपने कुछ अशार से भी नवाजें। अच्छा, हमारे आपके अगर ये तय हो गया होता कि हमें अशार भी सुनाने होंगे तो हम कुछ लेकर आते सामान, मगर आपने जनाब आप जहमत करें और आप बगैर कलाम के, तो ये अधूरी बात हो जाएगी। सोचा भी ले चलो, फिर आगे शर्म आई कि वो कहेंगे लिए शायर अपना बस्ता लिए चले आ रहे हैं, वाकई मेरे मैं ले चलूँ, मैं वही कि शायरों के बारे में समझा आता है कि वो बस्ता लिए फिरते हैं। नहीं तो शायद सुनाने के शौकीन हो या ना हो, लेकिन हम सुनने के बहुत शौकीन हैं। तो वो हमारे जख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं, हमारे जख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं कि उस गली में गए अब जमाने हो गए हैं, हमारे जख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं कि उस गली में गए अब जमाने हो गए हैं। तुम अपने चाहने वालों की बात मत सुनियो, तुम अपने चाहने वालों की बात मत सुनियो, तुम्हारे चाहने वाले दीवाने हो गए हैं।
تمہارے چاہنے والے دیوانے ہو گئے ہیں، جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے، جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے، وہ صبح و شام تو جیسے فسانے ہو گئے ہیں، جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے، وہ صبح و شام تو جیسے فسانے ہو گئے ہیں، زمانے ہو گئے ہیں۔ عرض کروں کہ طالبہ صاحبہ کہ وہ زلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد، وہ زلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد، تو بادل آئے ہیں اور شامیانے ہو گئے ہیں۔ وہ زلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد، تو بادل آئے ہیں اور شامیانے ہو گئے ہیں۔ عجب مہک تھی میرے گل تیرے شبستاں کی، یہ سنیے آپ، عجب مہک تھی میرے گل تیرے شبستاں کی، سو بلبلوں کے وہاں آشیانے ہو گئے ہیں۔ عجب مہک تھی میرے گل تیرے شبستاں کی، سو بلبلوں کے وہاں آشیانے ہو گئے ہیں۔ آخر شعر یاد رہا کہ ہمارے بعد جو آئیں انہیں مبارک ہو، ہمارے بعد جو آئیں انہیں مبارک ہو، جہاں تھے کنج وہاں کارخانے ہو گئے ہیں، جہاں تھے کنج ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ جون ایلیا صاحب آپ کا، آپ نے زحمت کی، آپ تشریف لائے اور آپ نے یاد کیا، وقت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اب بڑی خوشی ہوئی اور مجھے امید ہے کہ سامعین نے بہت ہی پر لطف، حالانکہ آپ اداس باتیں کرتے رہے لیکن مجھے ندامت ہے کہ میں نے اپنے سامعین کو مداس نہ کیا، نہیں صاحب بہت پر لطف اور بہت وقت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ سامعین نے بہت ہی پر لطف، حالانکہ آپ اداس باتیں کرتے رہے لیکن مجھے ندامت ہے کہ میں نے اپنے سامعین کو مداس نہ کیا، نہیں صاحب بہت پر لطف اور بہت بامانی گفتگو سننے میں آئی اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، شکریہ۔